Hello and welcome everyone to a new episode of Conversation of KGPNs. Today we have the pleasure of welcoming Mr. Ashay Ganwar, an accomplished filmmaker and IIT KGP alumnus. With a strong foundation in engineering, Ashay has successfully merged technical skills with his creative passion, making a name for himself in the film industry. His journey from the classroom of IIT to working with prominent media houses showcases his determination and talent. Let's dive into his inspirational journey and learn more about the experiences that shaped him. Great, let's start. I think. This interview wouldn't be complete without starting from your roots of your story. Many know for your creative work, but a very few of them realize that you were once immersed in the world of engineering, tackling Mhm. the JEE and studying at IIT Kharagpur. It's always fascinating to understand how those foundational experiences influences someone's future passions. So let's begin by talking about those early days. How was the journey of JEE for you? What were some of the strategies that you had used during those initial years? Okay, so I was a good student during my school times, and it comes with that baggage of being a good student that you have to do engineering and medical. That is like the normal norm that we had been through. Uh, During my 11th and 12th, I was in a school where obviously the coaching was merged, and I didn't do well because I just got distracted. I was not that much attentive to the education point. And what happened is I didn't clear it on the first go. And it was not, and I realized that way before that I won't be able to do that. But something tricked me into it, like tricked in the sense that some comments that were done, some things that were said about me being not being that attentive, not by my family, but people all across. And I am a person who, even till date, takes a lot of critique in a very to the heart, basically. And I don't really do anything. When I'm angry, I work. So when I'm angry, that was my only thing. I used to go and study. So I took a drop year. I studied like anyone who's there in Kharagpur or any of the IITs, like you study for 16, 18 hours in your life, you breathe and eat and drink your material, that is your course material. So for 1 year, I did that during the drop year. It was the best year of my life till date, literally the best year because you see, when you have nothing else to distract you, you have nothing else to think about कि एग्जाम कब है कि ये कब है बोर्ड है वो है you were just focusing there. So and I love maths. I still love maths. I love programming. I love to do some technical stuff. So it was never a part of the journey of me becoming a filmmaker. It was always I wanted to be an engineer or a businessman. My thoughts were always to get into business. So when I entered Kharagpur, I remember distinctly that I had a great friend Orko who he was my first roommate, and I went there. I kept my luggage. I came down, and my father, for the first time in my like after I've cracked JE, after I've reached Kharagpur, did all my stuff for getting into the premium institute. Now looking forward to a comfortable life, जो promise जो किया जाता है तुम्हें. And I came down and my dad said कि placement में नहीं बैठना है. This is the first year, first day of my life. And I was like, okay, then what should I do? Because he was like, placement नहीं, नौकरी नहीं करनी है. So I was like, okay, ठीक है, चलो करते हैं, क्या देख सकते हैं? And I was still lost. What will I do? I knew that I'll do business, and that is one thing that I was very focused, even since class fifth, actually, if I will be very honest. My dad gave me Rich Dad Poor Dad in class fifth. So from there, I started to study what is assets, what is liability, what is all of those things. I became proficient in order to understand taxations by the class of 9, 10th. I was into investments of shares and all of those things. I was aware about what the financial market is, thanks to my father, who was an avid investor and not a trader. And we don't come from like a business class family background. We come from a very humble background. So I understood that in order to make money, you need to
invest money. And that is how I was trained earlier as well, that what the power of money can be, and what the power of job, and what is the power of entrepreneurship. Obviously both have their own sides. तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि जॉब करना बुरा है या बिजनेस करो सब लोग, because if you ask me now, I will rather go for a job. And it's a life decision you take, and you can always change, obviously. So the first date happened, and my life in Kharagpur started off. I at first thought I am a cool dude because I was like कि मैं तो सब जानता हूँ, पेंटिंग भी, ड्रामा भी, and म्यूजिक भी बजाता था मैं. I've learned sitar for like 3 years. I've learned piano for around 7 years. So I thought that these things are going to get me into societies and clubs. And I got selected nowhere. And it was like in the first 1 month, and this is how the reality check came in. Because जब हम लोग घुसे थे तो फर्स्ट ईयर में थे, और हम लोग को सीनियर्स, क्योंकि मैं आजाद हॉल में था, विच वाज लाइक द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन केजीपी. आई वाज इन अ राइट हॉल. जैसे होता है ना ग्रिफिंडोर में डाला है, एकदम वैसे ही मुझे फील हुआ कि मेरे को एकदम सही जगह डाला गया है. जिस अग्रेशन स्लैश जो बोलते हैं ना कि शिवलरी का मिक्सचर आजाद में बहुत प्यारा है. मतलब मुझे अभी भी जितने आजादियन से मिलता हूँ, वो एक अच्छा बैलेंस के साथ चलते हैं. इट्स नॉट लाइक कि फुल अग्रेसिव है. इट कम्स विद अ फिलोसफी, इट कम्स विद अ थॉट प्रोसेस, जो आजाद में है. हाँ, एटलीस्ट उस टाइम तो काफी था. तो आई वाज टॉकिंग टू माय सीनियर्स, दे सेड कि यार मैं जाके एकदम फुल कॉन्फिडेंस कि मैं 6-6 सोसाइटी में हो गया तो क्या होगा टाइप का मैं घुसा था. तो वो लोग मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे कि देख, पहला तो तेरा होगा नहीं, दूसरा तू मैनेज नहीं कर पाएगा. ठीक है. और मैं 6 सोसाइटी 8 सोसाइटी जितने थे सबसे निकल चुका हूँ. मेरा जो रूममेट ऑर्को है वो अलग-अलग सोसाइटी में सेलेक्ट होता जा रहा है. ही वाज़ एन अमेजिंग गाय, ठीक है? एंड मैं रूम जाता हूँ हर दिन 1 महीने तक, मेरा कहीं हो ही नहीं रहा है यार. मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँगा? मैं तो फिर तो मतलब मेरे को मन था कि इतना को-करिकुलर करण जौहर मूवीज़ वाला इंसान था, ठीक है? तो वो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होगा, कूलनेस होगा, कुछ नहीं मिला. देन एक दिन आते हैं कि फिल्म सोसाइटी करके खड़गपुर में स्टार्ट हो रही है, टीएफटीएस. उस टाइम थी टीएसएफएमएस, बहुत लंबा नाम था. तो वो स्टार्ट हो रही है, तो उसके ऑडिशंस हैं, तो चलो. उस टाइम कोई नहीं था उस सोसाइटी में, जस्ट अ मेंटोर एंड रवि सिन्हा एंड सम अदर सीनियर्स वर देयर. कौस्तुभ खरे वाज देयर, एंड द मेंटोर वाज बिस्पति सरकार, बिस्सुदा हम लोग बोलते थे, हु इज नाउ लाइक टीवीएफ के एक इंटीग्रल पार्ट थे. और उसके बाद अभी उनका पोशंपा प्रोडक्शंस है, जो कि तुम लोग अगर जानते हो, काला पानी, ये सब कई सारे सीरीज उन्होंने बनाए हैं. ही इज एन अमेजिंग गाय टू टॉक टू. उन्होंने स्टार्ट किया था तो मैं तो चला गया था यार. मुझे लगा ठीक है, कुछ नहीं तो यहीं पे ट्रायल मार लेते हैं, फोटो तो खींचनी आती है. एंड मैं इंटरव्यू दिया, और मैं इंटरव्यू दिया था एज अ साउंड एडिटर. ठीक है, कि मुझे साउंड से थोड़ा आता है, कि मैं म्यूजिक बजाता था, तो कम से मेरे को एप्स वगैरह उस टाइम जो सॉफ्टवेयर थे वो उन सब का आइडिया था मुझे. एंड आई गॉट सेलेक्टेड. फर्स्ट ईयर आई डिड ऑल द ग्रंट वर्क of a spot boy, like thermocol लेना, ये करना, वो करना. Um, so this is where the journey started. A person who didn't know what a filmmaking is, a person who didn't know कि कैमरे में लेंस भी चेंज हो सकते हैं. बिकॉज जिंदगी में डीएसएलआर कभी देखा नहीं था उससे पहले. लखनऊ से आता हूँ मैं, वहाँ पे इतना कुछ कल्चर था नहीं. सो आई फेल इन लव विद द कैमरा, एंड आई वेंट टू माई पेरेंट्स. आई टोल्ड देम कि मेरे को करना है. एंड मेरे डैड को लगा कि ये तो ऐसे ही कुछ बोल रहा है, फालतू का खर्चा है, पहले इसको देखते हैं क्या करते हैं. तो घर पे एक कैमरा पड़ा हुआ तो पकड़ा दिया. एंड आई स्टार्टेड दिस पेज कॉल्ड आशिक अंगवास फोटोग्राफी उस टाइम. मेरी जितनी जर्नी होगी जनरली मेरे सिनेमा और ये एक्स्ट्रा करिकुलर के राउंड ही होगी, क्योंकि मेरी कॉलेज की पढ़ाई वाली जर्नी ज़्यादा कुछ है नहीं. ठीक है. तो वहाँ से शुरू हुई मेरी जर्नी. एंड आई स्टार्टेड द पेज इन लाइक 3-4 मंथ्स. उस टाइम पे 200-300 लाइक्स फॉलोअर्स हो गए थे पेज पे. तो घर वालों को लगा चल ठीक है, थोड़ा और फाइट मार रहा है. तो मैं बोला मैं कुछ और खरीदूंगा, ये नहीं वो नहीं, मेरे को एक डीएसएलआर दिला दो आप. ठीक है. तो माय डैड वाज लाइक ठीक है, इसका 6 महीने का प्यार है, खत्म हो जाएगा, लेट्स सी क्या करता है वो. दे दिया उन्होंने एक बार कि चल तेरा ये काटेंगे, वो करेंगे, जो भी है. मतलब ही वाज लाइक ठीक है, विलिंग इनफ. मतलब मेरे को सबसे सस्ती चीजें दी जाती थी हमेशा से. ठीक है. मतलब कि अगर लाइफ में अगर बाइक भी घर पे खरीदी जा रही है, तो ऐसी बाइक खरीदी गई थी जो 60 के ऊपर ना जाए. ठीक है. और सबसे सस्ती कौन सी हो, तो वैसे करके मेरे को कैमरे का भी वैसा ही मिला, बट decent enough to make me work. I started clicking photos every day during my summer vacations of second year, and then that page bounced, and
मेरे को बृहस्पति सर का जो थे वो बोले चल टीवीएफ चल तू अभी वहां पे जाके थोड़ा कुछ कर लेना. So second year December, I think in second year December only, I came to Bombay and I fell in love with this place. I fell in love because for the first time I could see camaraderie, I could see freedom, I could see a real sense of independence. And I was doing something that for which I could wake up for 72 hours straight and just have like 2-3 hours of sleep in between. वो मुझे मज़ा आ गया, उसके बाद से मैं घर गया ही नहीं यार, मैं हर छुट्टी में 1 हफ्ता घर जाता था और हर गर्मी, सर्दी मैं बॉम्बे में either with TVF or with some other seniors, I started coming and it worked out for me. Like, it was an initial stage, it worked out for me and कॉलेज की पढ़ाई की जर्नी अपनी चलती रहती थी। वो जर्नी तो मतलब वो होता था, अभी का पता नहीं कितना अटेंडेंस को केयर किया जाता है, बट उस जर्नी में मेरे को अ yeah, I was decent enough. It was not like amazing, but I realized my CGPA. I'll give you an example. मेरा CGPA जानते हो मेरा ग्राफ ऐसा था, मतलब नीचे आता जा रहा था हर सेमेस्टर। ठीक है, मतलब जो मेरा इनिशियल पॉइंट था वर्सेस जो मेरा थर्ड ईयर गवर्नर ईयर था फिल्म सोसाइटी का, आई आई फेल्ड इन वन सब्जेक्ट यार। तो जितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे थे मेरे, मतलब जितने नंबर ऑफ फिल्म्स मैं हर साल बना रहा था एंड वर्सेस मेरी सीजीपीए ऐसे गिरती जा रही थी। तो थर्ड ईयर एंड तक तो मेरे घर वाले भी गिव अप मार दी कि भाई ये बंदा तो पता नहीं क्या करेगा। पहला फक्का लगा था मेरा, ठीक है। तो लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ हूँ, ठीक है। तो पहली बार फेल भी हुआ था, फिर सप्ली देने आया था मैं। उसमें क्लियर हो गया, बट by the time I graduated, I had made around 77 or around 90 odd films, out of which for the credited ones was 77. और उसके बाद मैं ऐसा हो गया था कि यार अगर काम अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को फिल्म, तो मैं अपना नाम नहीं लिखवाता था। तो मैं वैसा चूजी था कि अभी भी हूँ कि मतलब मेरा नाम तब जाएगा जब मुझे पसंद है, अदरवाइज आई विल जस्ट वॉक आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। आई वर्क फॉर द प्रोजेक्ट बट आई वोंट टेक द क्रेडिट्स। तो इतना कर लिया था, घिस लिया था कि फिल्म मेकिंग समझ में आ गई थी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। पूरा यूट्यूब से सीख के और पूरा लोगों से इंटर्नशिप से सीख के। तो यार ये जर्नी, इस जर्नी का स्टार्ट ऐसे ही हुआ था। एंड उसके बाद एक प्रोफेसर थी, हैं अभी भी, डॉक्टर अंजलि गेड़ा रॉय। आई डोंट नो वेदर शी इज देयर इन एचएसएस डिपार्टमेंट नाउ और नॉट। तो उन्होंने, प्रोफेसर अंजलि गेड़ा रॉय ने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया था शुरुआत में। एक ट्रायल के लिए उन्होंने बोला कि एक जगह पे जाओ, शूट कर लो, 1 दिन का है, करके आ जाओ। एंड आई सेड ओके, आई विल डू दैट। एंड इन फोर्थ ईयर एंड वो फिल्म अच्छी बन गई। शॉर्ट फिल्म, मेरी लाइफ की पहली डॉक्यूमेंट्री थी वो। ठीक है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, 5 मिनट्स। कोई आइडिया नहीं कैसे डॉक्यूमेंट्री एडिट होती, कोई आइडिया नहीं कि भाई अच्छा लोगों का इंटरव्यू लेना होता है, उस पर एडिट करना होता है। मतलब देयर वाज नो प्ले बुक दैट आई हैड। एंड दैट इज वेयर वी स्टार्ट, लाइक आई एंड माई टीम एंड वी ऑल स्टार्टेड टू वर्क ऑन दैट। फोर्थ ईयर में वो किया मैंने। सी द जंप हैपेंड, लाइक 1 ईयर, फर्स्ट ईयर में तुम सिंपली स्पॉट बॉय होते हो, सेकेंड ईयर में जाके तुम थोड़ा सा कुछ कर रहे होते, समझ में आना चालू होता है, थर्ड ईयर में जाके तुम मैनेजोरियल हो जाते हो, और फोर्थ ईयर में जाते जाते तुम क्रिएटर हो जाते हो। ये मेरे को पूरा जर्नी समझ में आया बाद में। तो this all happened in fourth year. When I was graduating, before that, again, Professor Gera Roy had asked me for one more film that we were doing that time. कि भाई इसका जाके इसका बस इंटरव्यूज रिकॉर्ड करा और छोटी फिल्म बना लो। मैं बोला ठीक है मैम। एंड वो प्रोजेक्ट जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब तक डिलीवर कर लिया था, बट आई वाज नॉट हैप्पी। तो वहां तक की स्टोरी कॉलेज की थी। उसके बाद फिर एक अलग जर्नी चालू होती है, जो कि मतलब थॉट टू बी अ bed of roses but actually turns out to be bed of thorns। तो ऐसा लगा कि सबने रोज तो काट दिया, उसके नीचे के स्टेम लगा दिए नीचे। तो वैसा सिचुएशन था। या एनीथिंग मोर? am I answering it right or am I swaying away? No? Okay, perfect. Definitely. So that was an amazing insight. Okay, moving ahead. As you mentioned about your hall being Azad, so the next question is related to that. Halls at IIT Kharagpur are known for the vibrant communities. So you have already answered a part of it that you were a part of Azad Hall of Residence. Are there any particular moments or experiences that you still recollect and feel proud about or feel happy about? So in Azad, see,
So there are two kinds of students over there, three kinds actually. One who's, I'll say, is more involved in the college activity. The second ones are those who are involved in hall activities, and the third ones are those who are involved in just web series. So I was majorly on the first part. I was majorly doing everything across the college. But second, like for Azad Hall, it was, यार वो सबसे अच्छा था, मतलब वो इसमें अच्छा ये था कि आजाद में ना फ्रीडम बहुत मिलता है। स्पेशली मैं एड डिजाइन करता था, तो वहां पे जो फ्रीडम मिलता था ना, वो मेरे को कभी, मतलब हम लोग ने कभी नहीं जीता यार। मतलब पहला साल में शायद आजाद गोल्ड जीता था जब मैं पार्ट नहीं था टीम का। उसके बाद जब मैं आया हूँ हम लोग जीत ही नहीं रहे थे, क्योंकि हम लोग थोड़े रिबेलियस लोग थे कि यार अब कॉलेज का वो हॉल का फंड मिला है, कुछ एक्साइटिंग अलग चीज करते हैं जो उस लोग को देखे और होश उड़ा दे, भले जीते ना जीते। तो वी वर ऑलवेज दैट काइंड ऑफ रिबेलियस पीपल। हम लोग जैसे ही निकले वापस आजाद जीतने लगा। तो ये तो क्लियरली दिख गया था कि हम ही प्रॉब्लम थे आइडियली, जिनको थोड़ा सा रिबेल करना है, फ्रीडम चाहिए। एंड हॉल एक्टिविटीज में मेरे को याद है कि पहले साल में इल्लू होता था जो सबसे बस सब किया था यार। मतलब फर्स्ट ईयर तो आई वाज इन द म्यूजिक एज वेल, तो मैं पूरे टाइम फर्स्ट ईयर में तो हॉल एक्टिविटीज में भी बहुत इन्वॉल्व था। सारे म्यूजिक इवेंट्स में मेरे को पियानो बजाने के लिए पकड़ा देते थे, चाहे ड्रामा हो चाहे जो हो, उठा के ले आते थे मेरे को। ठीक है, उसके बाद वो होता था, इल्लू होता था। इल्लू में मतलब वो मैं मोटा था, तंदुरुस्त इंसान अभी भी हूँ, तो वायर पैनलिंग करके एक होता है, तो उसमें लेग खींचे पड़े हैं, तो खिंचवाते थे रात में। वो सब काम किया। सेकंड ईयर से लाइफ इजी हो गई, क्योंकि मैं म्यूजिक म्यूजिक छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं हो पाएगा भाई, तुम लोग कर लो, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं इतनी चीजें नहीं कर सकता। मुझे कैमरा पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ अपने कैमरे के साथ। देन एज द पेज वाज आल्सो ग्रोइंग, तो लोगों को लगा भाई इससे फोटो खिंचवाते हैं अपने, जब इल्लू हो जो भी हो, तो वो फन एक्टिविटी हो गया मेरे लिए। क्योंकि फिर मेरे को ये सब गधा मजदूरी में बोलता था कि उसमें नहीं पड़ना है, मेरे को अपनी फोटोज खींचनी, बढ़िया से आराम से अपना जाऊंगा एक प्रिविलेज के साथ, लोग बुलाएंगे खींच दूंगा। वो काम करने लगा था मैं। सो बेस्ट चीज होती है, आप इतनी मेमोरीज आप बनाते हो ना उस टाइम की। तो जैसे इल्लू का भी कवरेज पहली बार किया था, तो मैंने ही किया था, और मैंने ये रूल बनाया था कि इल्लू जैसे ही होगा, और अपन थोड़े मार्केटिंग वाले भी थे थोड़े दिमाग से, तो जैसे ही इल्लू हुआ मैं घूमने नहीं निकला सेकंड ईयर में, और मैं विद इन लाइक एन आवर आई पब्लिश द एंटायर एल्बम ऑफ आजाद का पूरा। तो फिर वो उसके बाद वो ट्रेंड बन गया कि तुरंत जैसे ही खत्म हो तो हर हॉल का अपना अपना। एंड डेस्टिनी भी बहुत अलग चीज है। पहले मेरे को कहीं घुसने नहीं देते थे, फोर्थ ईयर में मेरे को स्पेशली ले जाते थे हर हॉल में फोटो खींचने के लिए। पहले मेरे को मतलब स्प्रिंग फेस्ट वगैरह में दूर से फोटो खिंचवाते थे। चौथे साल में मेरे को अंदर घुसा के फोटो खिंचवाते थे, और ग्रेजुएट हुआ तो पे भी किया गया। तो आई फाउंड इट टू बी वेरी ईगो मसाजिंग, क्योंकि मैं बोला ना मेरा ईगो बहुत हिट करता है जब कोई छोटी चीज होती है। तो जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेरे को भगाया गया था स्प्रिंग फेस्ट या इन सब में, तो आई वाज लाइक तू ही पैसा देगा, अभी रुक। although whatever it is coming it is great। आजाद में बहुत अच्छा था। आजाद में मेरे को uh, यार हॉल इज मोर लाइक यू मेक फ्रेंड्स दैट आर स्टिल देयर, एंड दे आर, दैट इज द ओनली थिंग दैट हैपेंस इन हॉल। आप इतने सारे हार्डशिप्स को साथ में गो थ्रू करते हो कि आप एक दूसरे के रोने से लेके खुशी तक सब देख लेते हो। ठीक है, आप लोगों के ट्रांसफॉर्मेशंस देख लेते हो, आप वेज से नॉन वेज होते हो देख लेते हो यार। मतलब प्रॉपर इंसान जो कभी नहीं छुएगा वो तक लास्ट ईयर तक आते आते फ्रस्ट्रेट होके, यार चल खा लेना प्लीज, तू नहीं खा रहा है वेज, क्या खराब सा है वो। कुछ तो चेरी पाइनएप्पल की सब्जी बनती थी जो जिंदगी में मैं कभी नहीं सुना था, वो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अलग ही एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ वो है। तो मेस मेरे लिए बहुत एक्सपेरिमेंटल जगह थी। बस दाल चावल खाते थे, क्योंकि बाकी चीजें मुझे समझ नहीं आती थी कि खानी कैसे, और दही बचाता था। तो इनफैक्ट टिल नाउ इवन व्हेन आई एम मैरिड माय वाइफ इज लाइक, इनिशियली ड्यूरिंग आवर मैरिज इयर्स शी वाज लाइक, और व्हेन वी वर डेटिंग, कि अरे रात में दही नहीं खाते। इनफैक्ट मेरी मॉम भी ऐसी बोलती थी कि रात में दही नहीं खाते। मैं बोला आ जाओ जरा वहां पे, रात में क्या दिन में हर टाइम दही के बिना अंदर जाएगा ही नहीं खाना। तो अब तो मैं ये मिथ मान चुका हूँ कि रात में दही खाने से तबीयत खराब होती है, मैं तो अभी तक खा रहा हूँ। ये दिस वाज माय मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फूड। तो फूड इन मेस, सैमडी अमेजिंग। सैमडी भाई, मतलब सैमडी अभी पता नहीं है कि नहीं है, आजाद हॉल में सैमडी क्या शिकंजी मिलती थी, वो सब चीजें होती थी यार, जिसमें दूसरे के अकाउंट में, मेरे अकाउंट में लोग लिखवा के चले जाते थे।
तो फिर मैं लड़ता था, वो 3 रुपए की शिकंजी के लिए लड़ाई होती थी, मतलब उस टाइप का चीज है। जो कि फिर बाद में 300 उसने 5 रुपए या 4 रुपए किया, तो उस पर भी बवाला हुआ था। दीज वर लाइक, if you look back, it looks like very nice, cute things happening on a daily basis. तुम्हारे प्रॉब्लम्स उतने बड़े नहीं है, तुम्हारे प्रॉब्लम्स वो 1 रुपए या 2 रुपए का डिफरेंस है, उस पर पूरा डिबेट चल रहा है। ठीक है। And still, till now, what really works when I talk to people, what was the difference between as like college life and when I came out? तुम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, तुम लोगों को दिखता नहीं है जब कॉलेज में होते हो। द कॉन्वर्सेशंस आर इंटेलिजेंट and you crave for that. You don't crave for any random gossip that is going around. You crave for a good conversation कि मतलब कोई भी चीज अगर लोग पूछते डिफरेंस क्या है तुम लोग जब पढ़ते हो वहां पे और हम लोगों में, मैं बोलता हूँ यही डिफरेंस है कि तुम कोई गॉसिप करोगे और मैं उस गॉसिप के पीछे का साइंटिफिक रीजन पे बात कर रहा हूँ कि अच्छा ये ना तूने ऐसा पढ़ा था, याद नहीं है, ऐसा होता है, तो एग्जाम्पल ये है। दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट आई कुड सी, एंड आई लव दोज काइंड ऑफ गॉसिप्स वेयर यू हैव समथिंग ऑफ वैल्यू बीइंग एडेड। तो तुम्हारी परसेप्शन थॉट्स काफी चेंज हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अबाउट बीइंग देयर। इनफैक्ट मुझे लगता है वहाँ के दुकान वाले भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी मतलब थोड़े दिमाग से ही बात करते हैं, ऐसा रैंडम नहीं रहते जो बाहर चलता है। सो या हॉल यार इतना ही था मेरा। हॉल वाज बेस्ट फ्रेंड्स मेड एंड जो सभी बोलते हैं, बट या हॉल हॉल में मैं रहता ही 4 घंटे था यार। सोने के लिए जाता था मैं, मतलब लिटरली मेरा सुबह 7:30 से क्लास क्लास अगर चालू हुआ है तो मैं बाहर निकलता था, फिर 5:30 बजे तक खत्म होता था जो भी, फिर वापस आया, दोस्तों के साथ गप्पे मारी, चिल किया, 7 बजे से 7:30 डिनर किया, उसके बाद सोसाइटी मीटिंग में भाग गए, वहां से निकले 12-1 बजे, उसके बाद थोड़ा इधर उधर चले गए अपना, कहीं पे बैठ गए जाके वेजीज वेजीज या कहीं पे भी, फिर 3 बजे घर आता था और रूम तो 3 सवा 3 घुसता था, 3 से 7 सोया, 4 घंटे सो के वापस दिन चालू। तो यही था, मतलब यही लाइफ है, मतलब। और इट्स like it is what an alum had come to Azad in 2014 and उनसे भी ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया था, सर what was your most memorable moments in Azad or in Kharagpur, and he gave the best answer. The best moments are something that I don't even remember. So if you get what I mean, it was like that. So it was his line. It's it's something that you forget. It's just the vibe that you remember. It's all the friends that you had. Yeah. Definitely. So, since we all know that IIT Kharagpur students often juggle multiple interests alongside their academics, and now, if we ask you, how did you manage the balance between engineering studies and your passion for filmmaking, and how did you balance? How did this contribute to your personality growth? So I was very clear about जो एक फक्का लगा थर्ड ईयर तक आते आते, which was very delayed फक्का. It should have come in earlier if I was not balancing it well. But ये था कि यार एग्जाम से पहले मैं पढ़ता था, मैं 2 हफ्ते तोड़ के, मतलब दुनिया जहान सब हटा के, और स्केड्यूल कर लेता था कि भाई ये 2 हफ्ता पढ़ना है हर एग्जाम से पहले। टेस्ट वगैरह के लिए शुरू में पढ़ता था, थर्ड फोर्थ ईयर तक आते आते आप लूज हो जाते हो कि यार ठीक है अब हो रहा है यार, रोज का बात है। ठीक है, शुरुआत का स्ट्रेस होता था, बट मैं पढ़ाई को लेके बहुत क्लियर था, मुझे पास होना है। मेरा सिंपल फंडा था, मुझे पी तो चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा अपना एजेंडा था, मेरे को पता था मेरे को सीजीपीए से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे को सीजीपीए, शायद मैं अभी फाइट मार रहा हूँ पढ़ने के लिए, जॉब में बैठना होता है जिनको जॉब में बैठना है, जिनको कुछ भी करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नहीं होता कि सीजीपीए मेरा छग्गी पंजी था, मतलब मेरा सीजीपीए अच्छा था, डिसेंट था। आई वाज एवरेज 7.5 और सो। तो आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, एंड मेरे को ये समझ में आया कि यार पास हो जाओ वो इम्पोर्टेंट है। सीजीपीए जब आप देखते हो तो सीजीपीए इज नॉट अ मार्क ऑफ हाउ अमेजिंग यू आर, फॉर मी एटलीस्ट इट वाज मोर फॉर मी दैट हाउ डिलिजेंट आई एम, how much I can work and how much I can balance both the worlds of my life. Balancing was really difficult. It was not easy. It was stressful. When I look back, it was stressful. Uh, आपके अपने एम्बिशंस होते हैं, गोल्स होते हैं, बीच में आपको लगता है शायद नौकरी में बैठ जाना चाहिए, 1-2 साल कर लेते हैं, तो वो फिर आप अपना पास्ट देखते हो कि ओ
इतना अमेजिंग तो नहीं कर रहे हैं कि अच्छी नौकरी बहुत भयानक मिल जाएगी। एंड बट बैलेंसिंग जो कॉलेज में लोग हैं, मैं ये बस बोलूँगा कि अभी आपको लगेगा कि यार बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है ये सीजीपीए, और ये फर्स्ट स्टेप के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कई लोगों के लिए हो सकता है। बट एज यू गो ahead in your life, it's more about how you deal with the situations around you in a setup where you are working. अ, आप वो जो उस टाइम का पढ़ा हुआ चीज़ है, अगर आप उसको सही से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, इम्प्लीमेंट इन द सेंस एजुकेशन इम्प्लीमेंट नहीं करना होता है। योर वर्क स्टाइल, व्हाटएवर डिसिप्लिन यू हैव मेड इन योर लाइफ, कि मैं डेडलाइन फॉलो करता हूँ भाई, मेरा अभी तक प्रॉपर है कि डेडलाइन मतलब मीन्स अ डेडलाइन, तो वो सब चीज़ें आप इनकलकेट कर लेते हो कि मैं डिलीवर करूंगा, मैं चीज़ें सारी करूंगा, मैं खत्म करूंगा चीज़ें, फेल नहीं होऊंगा। तो वो स्ट्रेस को मैनेज किया मैंने काफी, एंड बट बैलेंसिंग वाज नॉट दैट टफ इफ यू आर एबल टू, मतलब तुम प्रायोरिटाइज कर लो ना यार, एग्जाम से पहले मैं नहीं करूंगा कुछ और, मैं पढ़ाई कर लूंगा एक दो हफ्ते, नहीं करूंगा मैं कुछ और, मैं लाइब्रेरी जाके बैठ जाऊंगा, make good friends of with people who are studying, make good friends with the people who are going to be your project partners. I'll give you an example. मेरा फोर्थ ईयर में बीटीपी था, पता नहीं शायद ऑप्शनल होता है। मैंने वो टॉपिक लिया जो मुझे बहुत पसंद था, कैमरास के अराउंड था। एंड मुझे नहीं पता था, जब मैं ले रहा था टॉपिक का नाम अच्छा लग रहा था, बट जब मैं ले रहा था वो टॉपिक, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये तो एनएलपी है, इसमें तो सीएस का लगेगा, और सामने वीजी सोम का पूरा एमबीए वाला पार्ट है। मेरे डिपार्टमेंट के वो पूरे कोर्स स्ट्रक्चर का एक चैप्टर का एक पार्ट था, मुझे बाद में समझ में आया जब मैं पूरा घुस गया था उसके अंदर। बट आई गॉट अ 10 पॉइंटर देयर बिकॉज आई लव्ड डूइंग दैट। एवरी मॉर्निंग टू इवनिंग आई लव कोडिंग, अभी भी, मतलब मेरे को कोडिंग बहुत पसंद है, जितना भी छोटे लेवल पे भी हो, मुझे लॉजिक्स पसंद है। सो आई गॉट माई 10 पॉइंटर इन माई बीटीपी प्रोजेक्ट्स, जो कि कोई नहीं, बहुत रेयरली मिलता है। मैं पूरा पाइथन कोडिंग सीखा, सी प्लस प्लस कोडिंग सीखा, सब चीज़ें करता था मैं। इट्स तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया, जो मुझे चीज़ पसंद है उसमें मैं तोड़ दूंगा। मैं फोक्सवैगन में इंटर्नशिप पे भी गया था यार, ऐसा नहीं है, मैं उधर भी काम किया हूँ, केवल फिल्म मेकिंग नहीं किया। तो फोक्सवैगन में भी गया हूँ, वहाँ पे भी देखा हूँ, वहाँ पे मेरे को एक्सेल से प्यार हो गया था, तो मुझे समझ में आ गया यार, आई एम अ वर्कोहॉलिक, if you put me into whatever position, I'll work out. So balancing is easy if you are able to prioritize at the right time. जनता प्रायोरिटाइज नहीं करती है, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। जनता बोलती है अभी और थोड़ा दिन है, अभी और है, अभी और है, नहीं। तो मेरा वो स्किल था कि मैं देख लेता था कि भाई इस सब्जेक्ट के लिए इतने घंटे के वीडियो लेक्चर हैं, क्योंकि क्लासेस तो कम ही अटेंड कर रहे होते थे, तो इतने वीडियो लेक्चर्स हैं, उसको देख लेंगे तो हो जाएगा। अब इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए इतना टाइम लगेगा, तो मैं पूरा स्केड्यूल बना लेता था पहले ही। तो 2 हफ्ते का स्केड्यूल बनाता था, कैसे मैं खत्म करूंगा पढ़ाई, या और बाकी टाइम मजे यार, कितना ही काम है बाकी तो। फोर Great. मंथ्स में That 1 मंथ इज एग्जाम, 3 मंथ्स इज फॉर योर सेल्फ। तो yeah. that's a great tip to our juniors. Okay, so now moving towards the field, what are some of the technical challenges that you think you face during filmmaking, and how do you balance the artistic side of a project with the technical challenges during the production? Okay. What I think is filmmaking is always about problem solving. It's not about making a final film. आप एक पेपर पे लिख लेते हो, आपको पूरा आइडिया होता है चीजों का, and it's not a single person's job. It is a team that is working across. मतलब हम लोग की पहली फिल्म भी मैं अकेले नहीं करा था, 2-3 लोग थे। So it is a team effort. The challenges that come on board are solved by everyone. I won't say कि कोई particular technical challenge होता है। जो challenge होता है आप पहले ही anticipate करते हो, तो it's more about planning. When you get into filmmaking, you realize that आप एक दिन के शूट के लिए 2 महीने की प्लानिंग लेते हो। ठीक है, तो वो प्लानिंग टू द टी, आपको पता होता है कौन इंसान का क्या स्किल सेट है। आई एम अ प्रोड्यूसर, आई माय बेसिक जॉब रोल, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, is I have to find people who have never worked in their entire life together. And within 24 hours, I have to make them work as if they are chuddy buddies. So my skill set is to identify those people who can work together quickly. It's more like HR thing.
Before that thing, it's more about finding a concept, what a concept can be that can be worked upon, that will resonate with the audience, that will resonate with a lot of things. And as you grow up, अब जिस स्टेज में आ गया हूँ तो मेरे challenges टेक्निकल उतने नहीं होते हैं मेरे challenges. You technically you have people who are great at their job, like Abhinit Shute is there and the others are there. Samar, Pratik Patra, many Kharagpur people are working with us. They are great with that. मेरा challenge generally होता है budgeting. How much are we planning? Forecasting everything. How the shoot schedule will be. How much time do people will need rest for? And आजकल ज़्यादा हो गया लीगल इज ऑल्सो अ बिग कंसर्न. तो आई हैव टू स्टडी अबाउट लीगैलिटीज, अबाउट द accountings, about the technical specs of a project. What do they need? How do I shoot that with those technical aspects in mind? Initially, when we started, it was all fun. Initially, when we started, it was all risk. अनरिजर्व के लिए जैसे मैं आपको बताऊं तो अनरिजर्व जब हमने शूट चालू किया था उससे पहले 6 महीने तक ग्रू किया है वो कि क्या-क्या परमिशंस लगेंगी ट्रेन के अंदर शूट करने के लिए, ठीक है? तो मेरे को पहला राउंड में पता चलता है कि आप अगर पहले हम लोग वो कर रहे थे विवेक एक्सप्रेस केवल डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सो मैं गया, मैं पूछा सर क्या-क्या परमिशंस लगेंगी? तो बोले अगर आपके पास कोई फॉरेनर होता तो आपको सेंटर से परमिशन एक बार में मिल जाती। बट आपके पास क्योंकि कोई भी फॉरेनर नहीं है, तो आपको हर एक रीजन के पीआरओ से लेना हो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से साइन करा के लेना है। मैं बोला कितने होंगे इस रास्ते में? बोला 6। तो मैं बोला क्या सबके यहाँ जाके साइन कराना है? तो बोले हाँ, कराना पड़ेगा आपको सबके यहाँ जाके साइन। मैं बोला जेब में पैसा है नहीं, स्ट्रगलिंग बंदे हैं हम लोग सबके सब, निकले हैं, देयर वाज़ नो फाइनेंशियल सपोर्ट इनिशियली। तो बोला तो फिर रहने देते हैं, ये प्रोजेक्ट क्यों ही कर रहे हैं। फिर मैं एक दिन लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। शायद खड़गपुर ही आ रहा था मैं उस टाइम, तो मैं लोकल हावड़ा से खड़गपुर आ रहा हूँ कॉलेज के बाद। एंड आई सॉ नो वन कम्स टू चेक। तो फिर मैं वापस गया, फिर मेरी समझ से बात हुई, समझ भी बोला चल एक ट्रायल लेते हैं, जाते हैं यहाँ पे लोकल ट्रेन करके मैं जाता हूँ, देखता हूँ कैमरा निकाल के कोई आता है कि नहीं, कोई नहीं आया। तो हम लोग सोचे यार अब क्या ही बुरा हो सकता है, हम अपना ही बना रहे हैं, तो एक काम करते हैं पूरा लेके अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जाते हैं, लेट्स सी कोई रोकेगा तब रोक देंगे। So Samar took up that challenge. He went in with the DOP Omkar and one more guy, Rajat Bhargav. And bhai, entire shoot happened in 13, 15 days or 15, 18 days. No one came. No one came to check. No one said anything. पूरा शूट करके आ गए, सब हो गया, कुछ नहीं रुका। जब मूवी बन गई तो मैं फिर अपना कुछ जुगाड़ वुगाड़ बढ़ा के रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एक एक थे ऑफिसर, उनके पास गया दिल्ली में मिलने। उनको फिल्म दिखा दिया, वो बोले हाँ हाँ ठीक है चलेगा, हो गया, सब बढ़िया है यार। तो मुझे ये समझ में आया कि यार डेयर मार लो, जब जब तुम्हें लगे ना कि बहुत बहुत लोग बहुत चीजें बोल रहे हैं, भाड़ में गया, एक बार डेयर मारते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। एंड दैट फिल्म won us a national award, the first national award. सो वी रियलाइज कि इतना नहीं डरना है दुनिया से। टेक्निकल चीजें तो चलती रहेंगी, बट अगर तुम अपने ड्रीम्स को दूसरों के डर से रोके हुए हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम, यू कांट डू दैट। मतलब आप डेयर मारो, मन कर रहा है ना कुछ करने, करके देखो, फिर अगर कोई बीच में आएगा तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारी टीम का अभी वो हो भी गया है कि यार ठीक है जो होगा। नाउ वी आर लाइक 20 पीपल और राइट, कैमरा एंड शॉट्स इज ह्यूज नाउ, वी आर 20-25 पीपल इन द टीम। बट द कोर फंडामेंटल्स आर कि लीगल तो बोलते रहेंगे, हम लोग करके तो आते हैं, फिर देखते हैं कि लीगल फिर बाद में और कितना सॉल्व करना है, तो वो थोड़ा डर लगना बंद हो जाता है, आप जंप ले पाते हो, और जब आप जंप लेते हो तो आपको वैल्यू मिलता है। अगर आप जंप नहीं लोगे ना तो फिर आप वही बना रहे होगे जो दुनिया बना रही है, आप वही कर रहे होगे जो दुनिया स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कर रही होगी, और आपका कोई यूनिक वैल्यू नहीं बनने वाला। तो डेयर करो, हो जाता है, सोल्यूशन सारे आते हैं। So technical problems, I don't see any heavy technical problems. I see operational problems. Running a business is a different task altogether. You have to run it like a business. I guess that was quite an experience to just go around things, not the traditional way, but your own way.
Since you have had the opportunity to work with both traditional production houses and newer digital platforms like YouTube, how do you think the rise of digital content creation is changing the filmmaking landscape? And where do you see the future of cinema heading? I think the future of cinema will change in a single blink of an eye. Just wait. Um, and it's both exciting and concerning, at least for me. People, आप मतलब ये समझो कि आप जब शुरुआत की है, आप यूट्यूब वगैरह उस टाइम था, पहले था, राइट? एंड यू मेड चैनल्स, पीपल मेड चैनल्स दैट रीच्ड नंबर्स. नाउ दैट थिंग इज बीइंग टेकन केयर बाय एल्गोरिदम्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो ऑर्गेनिक तो कुछ ऑर्गेनिक है नहीं यूट्यूब की कैटेगरी में. तो आपको जितना दिखता है वो सब पुश्ड होता है. The advent of OTT came in. OTT came in with a very high risk system. And as a producer, I can say कि शुरुआत में काफी liberal थे, open थे, challenges देख रहे थे. Then the government and the other things, other factors started to come in. And obviously the business also, in terms of how they had envisioned and the amount of money that was pumped in. So content creation, I'm not a influencer. I'm not an influencer. I work with influencers, but I'm not an influencer, and I don't really uh, want to be in that category or making content for influencers. I'm making content and films for the OTTs right now. Uh, the things have changed majorly because of business driven. Is majorly business driven. Uh, why I said blink of an eye, because यार जब मेटा आया, विजन प्रो आया, ठीक है, or the way of consumption of content is going to change. There will be a day when you will just go out and एक launch आएगा, बोलेगा भाई $150 में आपको मस्त विजन प्रो मिल रहा है, या उसका चाइनीज काउंटर पार्ट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है. आपको लग रहा है आप स्क्रीन पे बैठे होगे, आप नहीं बैठ रहे होगे. आपको सस्ते में मिलने लगेगा, आप उधर शिफ्ट हो जाओगे. ठीक है. एआई आया है, हम लोग 2 साल से उसका पूरा कर रहे हैं. ठीक है, देख रहे हैं किधर ग्रोथ जा रहा है, क्या हो रहा है, अनरियल इंजन के साथ क्या हो रहा है. सो दिस इज वेयर वी हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट आप अभी सब सेलेब्स को पैसा देके शूट पे जा रहे हो, वो नहीं होने वाला है. बाय द टाइम यू गाइस ग्रेजुएट, द इंडस्ट्री वुड हैव चेंज मेनी फोल्ड्स विद इन 2 years. So the idea is to adapt. The idea is to always think about what is going to come in future. If you think that right now people are seeing on a screen, when I saw that Vision Pro का पहला promo, मैंने कहा भाई ये तो गजब है. मतलब जहां तुम बैठो वहां सिनेमा थिएटर है, right? So, and the only challenge is it becomes more individualistic rather than a group activity, which earlier it was like, which OTT has also made it very individualistic. आप एक थिएटर में बैठ के सबके साथ बैठो तो एक कलेक्टिव फीलिंग में मजा अलग आता है. बट आप अगर सिंगल देख रहे हो तो यार हाँ, अलग होता है. So I think that this whole technology and the advent of everything, entertainment industry is supposedly is definitely going to change. मतलब the industry that I'm working in, it is going to change and we need to adapt. And even this whole consumption of medium, like the medium of consumption is going to change drastically. uh, but it's going to be fun. मतलब it's going to be exciting because I like that, क्योंकि मेरे को लगता है यार कुछ चैलेंजिंग चलता रहना चाहिए. और मैं चाहूंगा कि मेरी ऑडियंस और हम लोग जो बना रहे हैं उससे और कनेक्ट कर पाए. एंड क्या होता है ना, जब चीजें चेंज होती है ना तो वो छटाई कर देती है. जो लोग अडेप्ट नहीं कर रहे हैं वो मार्केट से हटते हैं, और जो लोग अडेप्ट कर रहे होते हैं वो कुछ नया बना रहे होते हैं, तो बोरिंग नहीं होता. मतलब आप समझ रहे हो, मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में 30 साल और करने वाला हूँ, 40 साल और इसी में ही काम करने वाला हूँ. आई डोंट वांट इट टू बिकम लाइक अ 9 to 5 जॉब. आई वांट इट टू बी एक्साइटिंग एवरी डे. आई वांट टू कीप ऑन सॉल्विंग सिचुएशंस एवरी डे. आई वांट दीज थिंग्स एज मेगा थिंग्स टू बी वर्कड अपॉन. So yeah, I think the industry and the content and the journey. अभी आपको पहले YouTube था, उससे पहले आपका कुछ नहीं था, फिल्म थिएटर्स, जैसे YouTube आया, देन आप OTT पे आए. OTT के बाद अब आप कहाँ जाओगे आपको भी नहीं पता. इनफैक्ट मुझे तो लगता है OTTs को भी शायद नहीं पता है कि वो कहाँ जाएंगे. बट इट्स मोर लाइक it is going on, and the whole thing and the chain is going on. So yeah, it is fun, but in the end ऑडियंस को मजा आना चाहिए. सिंपल सिंपल ग्राउंड रूल है, आपकी ऑडियंस का है, उनको क्या मजा आ रहा है. All right. So that was pretty much a decent इंटेंस. insight on
how what was your view? So, as someone who has successfully made their career in filmmaking, there are many aspiring filmmakers who look up to you for inspiration. Many of them are juniors here at IIT Kharagpur. So, what would be your advice to those who have just started out in the industry who have this passion in their mind, but they are still facing different challenges? How can they overcome these early challenges? Um, See, it's a hustle life for the first 3, 4 years at least. It's not going to be a bed of roses. If it is going to be a bed of roses, समझ लो कि गलत जगह बैठे हो, ठीक है? क्योंकि easy life is very addictive. If you are not struggling for the first 2, 3 years, is something that actually makes you. It's like मैं कैसे मतलब uh, it's more like how much hard you can be grilled and how much pressure you can take. द ओनली एडवाइस इज ना मत बोलो शुरुआत में। ठीक है, एक समय आएगा जब तुम नो बोल रहे होगे काफी चीजों को, मतलब इतना नो बोल रहे होगे कि तुम्हारे येसेस कम होंगे और नोस ज्यादा होंगे। मतलब लास्ट 2 साल में मैं काफी नो बोला हूँ, यस 2 4 बार ही बोला हूँ, बट उन 3 4 साल से पहले मैं हर चीज को हाँ बोलता था। Why? Because it firstly it brings you closer to a lot of people. A network building is very important in this industry. If you don't know people, then you are done. Secondly, your experience on working on different kind of things. मतलब I'll tell you what I'll आपको लग रहा है कि मैं नॉन फिक्शन फिल्म्स बनाया हूँ, मैं सीरीज भी बना रहा हूँ, मेरी सीरीज लॉन्च भी हो रही है आगे की। But there's one more part of my life that is also advertising, which I would have not taken up as a person if I would have been focused on making one thing. Uh, we made more money out of advertising, obviously, than the traditional filmmaking approaches. And that is one of the things that has sustained the team effectively. Uh, so it was मैं ना नहीं बोला, मैं बहुत सिंपल यार, मेरा पहला प्रोजेक्ट जो एड स्लैश कुछ भी बोलो, मतलब अपार्ट फ्रॉम फिल्म मेकिंग, एक यार डांस स्टूडियो था, उन्होंने बोला हम डांस कर रहे हैं, एक इवेंट है, तुम आ जाओ कर दो। मेरे को कितना रुपया मिला? 5,000 रुपया। 2014 में 5,000 रुपया, 5,000 bucks when I had come out of college. My first project was 5,000 rupees, out for which I got a friend to shoot who was also a senior. I also shot. I edited for a month. Okay. And that was my first project, 5,000 rupees. Then I did wedding photography as well for 2 or 3 clients because मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए था, मैं बोला ठीक है चल कर लेते हैं, तो मैं सब किया हूँ। In fact, in advertising also, we started off working on like really good ideas. And now we have diversified from not just film, like film ads, like ads. We diversified into animation, a lot of things. So we never said no to a lot of things. So that अब वो क्या होता है ना, जो उसका स्किल सेट बनाना कि एनिमेशन कैसे हैंडल करते हो, से लेके शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे तुरंत काम होता है, वो हमारी फिल्म्स में यूज होने लगा। तो हमारी अगर देखोगे तो पैकेजिंग बहुत अच्छी होने लगी, फिल्म्स की एनिमेशंस अच्छे होने लगे, चीजें बहुत क्लासी होने लगी, बिकॉज ना नहीं बोला किसी चीज को। कई लोग आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं यार मेरे को ना बस डायरेक्टर बनना है ना? मैं बोलता हूँ ठीक है, तो क्या स्किल सेट है डायरेक्टर बनने के लिए? तो बोलते हैं राइटिंग। तो क्या लिखा है? तो कुछ लिखा नहीं होता लोगों ने, ठीक है? बनना डायरेक्टर चाहते हैं, बट डायरेक्टर इज, आपको लगता है कि डायरेक्टर सीधा डायरेक्टर बनता है, नहीं, डायरेक्टर के पास एक टेक्निकल स्किल होती है। इफ यू वांट टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, इफ यू वांट टू हैव सम टाइम टू सर्वाइव, बिकॉज यू नीड टाइम टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, आपको एक टेक्निकल स्किल की बहुत जरूरत है। मैं डीओपी की तरह एंटर किया था, मैं फिल्म मेकिंग में, मतलब मैं सिनेमाटोग्राफर था, वैसे मैंने सस्टेन किया, तो मेरा काफी कोर, अगर आप कैमरा एंड शॉट्स के प्रोजेक्ट्स भी देखोगे, दे आर वेल शॉट, because that became like a very core thing for me. And since I told you 9 years of music training, I became very choosy about the music we use. So music also turned out to be great. So visually and audio wise, we were very much in place. Story wise, जो डॉक्यू होता है उसमें मैं सीखा कैसे करना है, बट मेजरली आई फाउंड पीपल हु वर गुड एट दैट पार्ट ऑफ थिंग्स टू हेल्प मी आउट। बट कुछ चीजें होती है जो आपको सीख के करनी पड़ती है। आप कॉलेज के 4 साल क्या कर रहे हो उस पर बहुत डिपेंडेंट है। मैं 4 साल बस शूट किया हूँ, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 77, तो मेरे पास क्रेडिट्स हैं, उसके अलावा कितना मैंने किया वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, आई हैव शॉट इमेंसली ओवर देयर। तो
ट्रेनिंग करके आना होता है बाहर, बाहर आके ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती। अभिनीत शूटे जो एल्मा शूट किया वो तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर तक पार्ट्स में करता रहा है, ठीक है। And now he is the leading DOP in our Amazon show. He is the leading DOP of obviously the Netflix show. He shoots almost all our ads. He is there. He came out with a technical firm, like technical stronghold. Now he's directing a chess documentary, which is like amazing documentary, which is being done for 1.5 years. He's directing that along with a team. So where we are covering Prague and others also. So it's like a journey that we have covered. So उसका भी डायरेक्टर बन रहा है वो, बट वो एक टेक्निकल उससे आया था, उसको पता था सरवाइव कैसे करना है। ही वेंट इनटू अ जॉब, वी मेट एवरी लाइक वीक। वो यहीं था, 1 साल तक जॉब किया, 1.5 साल तक जॉब किया। एक मैंने उससे पहले डिस्कस किया था, सिंस यू आर गेटिंग इनटू दिस फील्ड, हैव सम सेविंग्स इन योर अकाउंट। यू कांट जंप इनटू दिस फील्ड एंड थिंक कि कल ही मेरा दुनिया बदल जाएगा, कल मैं उठ के तारा बन जाऊंगा, है ना, वो नहीं होता है। So he saved, he worked his finances out. He left his job. मैं उसको परसों ही फनी तरीके से बोल रहा था, जब तू जॉब कर रहा था तो तू 3 लोगों के बीच में एक घर शेयर कर रहा था। अभी जब तू जॉब नहीं कर रहा है तो तेरा पूरा खुद का घर है। So this is this is how he moved on in his life. And his journey has always told me कि भाई ये बंदा सही कर रहा है। इनफैक्ट सबका वैसा ही हुआ है शुरुआत। लोगों के पास एक टेक्निकल स्किल था, like Satyam, who is also a partner for me for the advertising firm. He leads that firm. He's also from खड़गपुर। 2011 से मेरा क्लोज फ्रेंड है। खड़गपुर में हम लोग साथ में फिल्म सोसाइटी के को गवर्नर्स थे। वो मेरे एड्स का पूरा संभाल रहा है हमारे यहाँ का। एंड उसकी स्किल है राइटिंग। वो राइटिंग से शुरू किया। सब लोग अपने अपने स्किल सेट के साथ आते हैं। ये मत आना कभी लाइफ में कि मैं तो डायरेक्टर बनूंगा, फिर तुम एडी ही बन जाओगे, असिस्टेंट डायरेक्टर बने घूमते रह जाओगे, तुम्हारे अंदर कोई स्किल सेट तो होगा नहीं जिससे तुम और बड़े बन पाओ। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि टेक्निकल नहीं चाहिए और मैं जाके सीख लूंगा, नहीं, आपको पूरा प्रैक्टिस करके सीख के आना पड़ेगा। मेरे को खड़गपुर के काफी बच्चे अप्रोच करते हैं, बोलते हैं हम राइटिंग अच्छा करते हैं। मैं बोलता हूँ लिखा हुआ भेजो, कुछ नहीं लिखा होता। कुछ का लिखा होता है, कुछ का नहीं होता है, बट आई फील लाइक कि तुम कर सकते हो। तुम एक वीकेंड भी दे ही सकते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट टू मतलब पार्टी, एक एक वीकेंड करो और कर लो, हो जाएगा। तो आई यूज्ड टू पार्टी अ लॉट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बट आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट आल्सो। मतलब आई वाज हार्डकोर वर्कहॉलिक। तो उस टाइम ट्रेन कर लो एंड बाद में निकलोगे तो अपने आप लाइफ सेट हो जाएगी। So you might know Vivek also. Vivek Saraswat also joined us right now. He worked with Vodafone for a year. Before that, he came in for an internship. His tech expertise was being a DOP, and then he learned edit over here. Now he's handling single-handedly handling major clients of ours within like 3 months of getting into the system. So हम लोग क्या थोड़ा वो फंडा होता है, थोड़ा टेक्निकल लेके आओ तो तुम्हें सीधा सब बड़ा मिलेगा फिर सीधा। बट अगर तुम्हारे पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो तुम बहुत ही एवरेज लेवल पे रह जाओगे। तो या Great. As you mentioned, dozens of credited projects over here and many more without name just done throughout the career. So many of your projects have gained significant attention and appreciation. In your opinion, what defines success in filmmaking? Would it be audience reaction, or would it be critical reception, or the personal satisfaction that comes with bringing a story to life? पर्सनल सेटिस्फैक्शन तो आज तक नहीं हुआ भाई। मतलब कभी नहीं हुआ। मतलब कि ऐसा नहीं लगा कि मैंने बना लिया उसके बाद देख के बोला वाह क्या गजब बनाया। वो लाइफ में कभी नहीं आता, अगर वो आ गया तो प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जब फ़िल्म बन रही होती है, मैं पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी कम देखता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत घबराहट होती है। इनफैक्ट आई वाज़ टॉकिंग टू बिस्वा यस्टरडे ओनली, बिस्वा कल्याणरत्न करके एक मलयालम स्टैंड-अप कॉमेडियन है। सो आई वाज़ मीटिंग हिम यस्टरडे, हम लोग को कुछ काम चल रहा है साथ में। और उनका भी यही था, वो चेस के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं, साथ में अभिनीत के साथ। तो मैं बोला आपने देखा फर्स्ट ड्राफ्ट? तो बोले कि नहीं यार मेरे को बहुत डर लगता है। मैंने कहा ले ये तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। मेरे को एक फ़िल्म जब शूट हो जाती है ना या हो रही होती है, उसके बाद से मेरा फ़ियर फैक्टर बहुत बड़ा होता है कि मेरे को लगता है पता नहीं क्या ही बना रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं। तो पर्सनल सैटिस्फैक्शन कभी आ नहीं पाता है, जब भी तुम देखोगे, किसी को नहीं आता कहीं पे भी। क्रिटिकल एप्रिसिएशन मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि मतलब कंस्ट्रक्टिव हो।
मेरे को लोग मुझे मुझे क्रैप मेंटालिटी नहीं पसंद है। कुछ क्रिटिक्स होते हैं, करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं क्रिटिकल होती हैं। यू लिसन टू देम, यू जस्ट मूव ऑन। लाइफ में हर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज़ करेगा ही किसी ना किसी चीज़ के लिए, चाहे तुम कपड़े कैसे पहने हो उससे लेके खाना क्या खाते हो, उससे लेके फ़िल्म क्या बना रहे हो। तो हर चीज़ में है, तो जितना लेना है उतना लो। मेन इज़ ऑडियंस। जनता को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोडक्ट कुछ भी बनता है, एंड ऑफ द डे चाहे तुम मोबाइल बना रहे हो, चाहे तुम कोई सर्विस एज़ अ सास सर्विस बना रहे हो, तो how is your audience receiving that? How is your customer using it? How is your user using? That satisfaction is the main satisfaction. उसके अलावा नहीं, मतलब उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। पर्सनल तो कभी नहीं, मतलब कभी नहीं यार, मतलब बस वो है कि बना दिया है, कर दिया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जेईई यार, इट्स जेईई। मतलब जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन का ऐसा आया होगा, उस दिन जितना खुशी तुम्हें शायद होना चाहिए, वो नहीं होता है। मतलब उस दिन लगता है ठीक है यार, हो गया, मतलब ठीक है, अभी चलते हैं आगे। है ना? ये वैसा ही फीलिंग होता है, जैसे ही रिलीज़ होता है तो लगता है यार ठीक है यार, हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं यार, हो गया भाई। तो ये वैसा ही होता है। किसी को वो नहीं लगता कि ओह माय गॉड! मैंने तो दुनिया बदलने वाली चीज़ बना दी है। वो फीलिंग मतलब द ओनली हैप्पीनेस आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम वाज़ व्हेन वी वन द फर्स्ट नेशनल। क्योंकि तब बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ था और हमें भी नहीं पता था हम लाइफ में कर क्या रहे हैं। क्योंकि उससे पहले से तो घरवाले, मतलब मेरे घरवाले तो बहुत प्यारे हैं, बट आस-पास की जो जनता है प्लस मेरे जो आस-पास की जनता है, उनके लिए थोड़ा वैलिडेशन मिल गया था मुझे बोलने के लिए कि मैं हाँ, ठीक-ठाक कर रहा हूँ। Because we won our national award when we were 25 years old. So it was like too young to have that. The second one came around 27, 28. Uh, so it is something that helped us to घर पे ये बताने के लिए था कि भाई इतने नालायक नहीं है जितना आपने सोचा। इतने नहीं है कि आप मेरे को जैसे बोला गया था, यू आर वेस्टिंग अ सीट ऑफ आईआईटी। कोई तो मेरा रिलेटिव ऐसा मेरे को फंडा दे के चला गया था। तो उन सब के साथ फिर बाद में फ़ोटो खिंचवा लिए। जब जीत गए तो वो लोग आके फ़ोटो-वोटो खींचे सब लोग, तो मुझे लगा यस, यस दिस फील्स ठंडक, कि जो जो तुम्हें गाली देते हैं वही बाद में तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। तो इट्स नाइस, इट्स द फीलिंग दैट वाज़ माय कोल्ड रिवेंज। बोला वापस ईगो, माय प्रॉब्लम इज़ ईगो। ईगो इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग बट वर्क रिलेटेड। मेरे को काम अच्छे से करना है, तो बस इतना। एनीथिंग एल्स वी हैव हियर? Yeah. The last two questions we have in for you. With a number of notable projects in your portfolio, is there any particular film or any particular project or documentary that is especially meaningful to you? Something that's very close to your heart, something that has had an influence to your subsequent work? आई थिंक क्लोज टू हार्ट नहीं होता तो उतना स्ट्रगल किसी में नहीं करता ना। क्लोज टू हार्ट तो सब होता है, बिकॉज़ एवरी प्रोजेक्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट। अनरिजर्व्ड वाज़ द फर्स्ट लव। उससे पहले भी थे। एक मेरा पहला फ़िल्म था व्हाइट क्लाउड, जो पहला बच्चा, जो फर्स्ट चाइल्ड होता है ना, वो उसके साथ वो अटैचमेंट है कि कॉलेज में बनाया और कॉलेज के लिए ही बना दिया था व्हाइट क्लाउड करके। एंड इट्स दैट बिकॉज़ उसमें तुम सीखे कि तुम ये कर सकते हो लाइफ में, तो वो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। अभी मैं देखता हूँ, लगता है क्या है ये, क्या बनाया है, मतलब क्यों ऐसा शूट किया है? बट उस टाइम तो यार था कि यार ये जो होता है ना, पहला बच्चा गलती भी करे तो भी माफ़ है वाला, तो बड़ा अच्छा लगा था वो बना के। उसने ज़िंदगी खोली मेरी, समझ में आया। अनरिज़र्व्ड ने मेरे डेयर करना सिखाया, मेरे को समझाया कि टीम क्यों इम्पोर्टेंट है, एक अच्छी टीम होना क्यों इम्पोर्टेंट है। बॉर्डरलैंड्स ने मुझे सिखाया कि बॉर्डरलैंड्स वाज़ अ टफ प्रोजेक्ट, एंड हैड इट नॉट बीन विद समर्थ, मैं अकेले तो नहीं कर सकता था वो प्रोजेक्ट। इट वाज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ हिम एंड अस एंड the chemistry we have. So Borderlands was again important. Alma का एपिसोड 2 इज माय थिंग। मतलब वो मेरे लिए एक वो जब मैं देखा ना यार, तब मुझे लगा कि यार मैं कहीं पहुंच गया हूँ। मतलब वो उसका एडिट होके, जब शिवाजी भी खड़गपुर का ही है, शिवाजी विश्वनाथ एडिटेड दैट। वो जब पहली बार देखा ना, मेरे को लगा ओह माय गॉड फाइनली। क्योंकि एजेंडा वाज कि जब कोई नॉन फिक्शन या डॉक्यूमेंट्री बोलता है, उसको अंडर ऑफ बॉर्डरलैंड्स या ऐसा कुछ भारी भरकम चीजें फील होती हैं।
एंटरटेनमेंट नहीं आ पा रहा था। और मेरा ऑब्जेक्टिव एक्चुअली यही है कि नॉन फिक्शन को थोड़ा एंटरटेनिंग साइड रखो, व्हाइल नॉट बिकमिंग लाइक अ रियलिटी शो। दैट इज नॉट माय एजेंडा एट ऑल। इट शुड बी समथिंग लाइक, एक प्रोफेसर, एक टीचर थी मेरी हिंदी की बचपन में, वो बोलती थी कि यार कुछ भी बनाना है तो पुलाव नहीं खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी पेट पे हल्की होती है। ठीक है, तो डॉक्यूज को भी थोड़ा खिचड़ी जोन चाहिए था मेरे को, कि थोड़ा सा लाइटर हो बट स्टिल हैविंग दैट एसेंस ऑफ थॉट एंड फिलोसफी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो वो मेरे लिए अल्मा का सेकंड एपिसोड वाज देयर, राइट बैंग ऑन मेरे लिए था वो, कि आई हैव फाइनली रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई कैन से हाँ मैं एंटरटेनमेंट भी कर सकता हूँ नॉन फिक्शन में, आम जनता तक पहुंच सकता हूँ। So yeah, these are the three, four things. Then uh, there's also one film called Super Teens, which came out later, which was with Solana करके एक cryptocurrency है, and उसके साथ blockchain है, उसके साथ किया था हम लोगों ने। It started as a corporate film, turned out to be like a dynamic thing because FTX crash हुआ, अगर तुम लोगों को क्रिप्टो का थोड़ा आइडिया हो या फिर उस दुनिया का तो। And suddenly the corporate film turned into a film. So it taught me that wait and things will change and be honest to what you are doing। और फिर तो यार हर प्रोजेक्ट में अपने अपने स्ट्रगल होते हैं। आप तभी पार कर पाते हो जब आपके पास एक अच्छी टीम हो। आप कभी नहीं पार कर सकते अगर आपके पास टीम अच्छी ना हो। और वो जर्नी में आपकी दोस्तियां बनती हैं, एंड दैट लिटरली, ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक प्रोजेक्ट कोई अच्छा था या कोई वो था, हर एक में आप कुछ सीखते हो। और वही है, जैसे तुम्हारे यहाँ स्ट्रगल एक फेस्ट कराने का जैसे देखोगे, तो फेस्ट करा के लोग फिर लास्ट तक जाते जाते मतलब वो हो जाते हैं ना, एक अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। एंड फेस्ट तो बस एक एक प्रोडक्ट है, एक लास्ट में चीज है, वो जर्नी जो होती है वो मजेदार होती है। उस जर्नी में अगर सही साथी ना हो तो आप बैंड बज जाती है, तो योर टीम हैज टू बी इम्पोर्टेंट। तो या एवरी प्रोजेक्ट हैज अ, you can't survive in this industry if you don't love each and every project। and वही है। Okay, so coming to the very last question of the interview, given your experience and growth over the years, where do you see yourself heading next in the career? Are there any particular genres or stories you are excited to explore in near future? अ, यार जॉनरा या स्टोरीज तो नहीं, मतलब मेरा कोई एम्बिशन है कि मैं एक पर्टिकुलर उसमें कुछ तोड़ूंगा। बिकॉज स्टोरीज बहुत अलग अलग टाइप की होती है, मैं बता सकता हूँ। जैसे अनरिजर्व्ड या फिर बॉर्डरलैंड्स देखोगे, देवर ह्यूमन स्टोरीज, देवर स्टोरीज अक्रॉस इंडिया, पीपल इन डिफरेंट स्पेसेस। देन यू सी Alma is a series. It's about Kharagpur and its life and education and your bonding with the people. End of the day सब human stories ही होती हैं, right? तुम्हारे themes change हो जाते हैं, but वो plot है पीछे का। ठीक है, काम है मेन इंसान देखना। ठीक है, तुम इंसान को देखने आते हो। तुम्हारे को मजा फिल्म में तब नहीं आता जब प्लॉट एकदम ट्विस्ट ट्विस्ट हो रहा हो, तुम्हें मजा तब आता है जब तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा हो। ठीक है, तो मैं जॉनर से इतना नहीं अटैच्ड हूँ। लाइक अभी जो आ रहा है इट्स अराउंड ई स्पोर्ट्स, उससे पहले था वो ब्लॉकचेन पे है। इनफैक्ट दो और हम लोग स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, एक आइस हॉकी ऑलरेडी चल रहा है, एक चेस चल रहा है। मेरे दो आगे के प्रोजेक्ट्स में हेल्थ केयर है। तो आई डोंट सी एनी एनी जॉनरा कि मैं तो इस टाइप का जॉनरा करूंगा। मेरे को ये है कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, लोगों का एस्पिरेशन या स्ट्रगल के आगे कैसे बढ़ रहे हैं वो मेरा मेन मुद्दा रहता है। फिश आउट ऑफ वाटर इज व्हाट आई से, समथिंग दैट रियली एक्साइट्स। एंड वो जिसमें भी हो, मतलब सब स्टोरी सेम ही है। एंड ऑफ द डे अगर देखो तो एक जगह मैंने पहले पढ़ा था कि जब फिल्म मेकिंग का शुरू हो रहा था कि सारी कहानियां तो रामायण और महाभारत में हो ही चुकी है, या फॉर दैट मैटर एनी अदर एपिक एपिक स्टोरीज दैट यू माइट सी। तो कुछ नया तो होने वाला नहीं है, कैरेक्टर्स वही आने वाले हैं। कैरेक्टर्स को कितने अच्छे से तुम दिखा सकते हो, वही गेम है। प्लॉट मीडियम ये ट्विस्ट टर्न, मतलब अब तो मतलब मैं लिटरली नेटफ्लिक्स या कुछ देखता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ कि दिख जाती है स्टोरी लाइन पहले ही कि हाँ ये ऐसे जा रहा है, ये कैरेक्टर है ऐसे मूव करेगा, ये होगा, वो जनरली फिट हो रहा होता है। So you know where the things are. Plus OTTs are now very statistically driven. तो you know कि ये stats इसको अभी बोलेगा, ऑडियंस अभी उठने वाला है तो अभी ये डाल दो। ठीक है, तो वो अगर तुम तोड़ना खुद से चालू करिए, तुम्हें पता होगा स्टोरी किधर जा रही है। तो जो स्टोरीज तुम्हें पसंद आएंगी वो स्टोरीज
प्लॉट से ज्यादा कैरेक्टर्स पे पसंद आई। मडगांव एक्सप्रेस हो गई फिल्म, या फिर तुम्हारी लापता लेडीज हो गई, इन सब में तुम्हारे जो कैरेक्टर्स हैं वो मूवी को ड्राइव कर रहे हैं ना। स्टोरी तो कुछ भी हो सकता है, एक कैरेक्टर है, उसके पास एक प्रॉब्लम है, वो उसकी जर्नी, दैट्स इट, राइट। तो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर बताऊं तो अनरिजर्व में समर्थ ने अराउंड 113 और ऑड इंटरव्यूज लिए थे। उनमें से 7 ही तो हैं, 5 ही हैं, 5 6 7 कुछ हैं फिल्म। सो वो फिल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे को लगता है स्टोरीज में आप जॉनर मत जाओ, मत सोचो कि आप ये जॉनर पे बना रहे हो। अगर वहां अटक गए तो आप फिर टाइप कास्ट हो जाओगे। इनफैक्ट लाइफ में भी कोई चीज अगर आप प्रोडक्ट में घुस रहे हो, आप सपोज जॉब में जा रहे हो, आप बोलते हो नहीं मैं तो जो है इस कंपनी का फलाना कंपनी का प्रोडक्ट ही संभाल सकता हूँ, ऐसे वर्क नहीं करता लाइफ। आपको आपकी लर्निंग्स को इधर उधर लगाना पड़ता है। हो सकता है आज आप मोबाइल बेच रहे हो, कल आप लॉजिस्टिक्स में काम कर रहे हो, बट बेसिक्स तो सेम है ना। मतलब बिजनेस तो बिजनेस है, धंधा तो धंधा है, सेल्स तो सेल्स है, मार्केटिंग मार्केटिंग है। वैसे ही हमारे यहाँ भी है कि जॉनर तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हें किस चीज में मजा आने वाला है वो है। तो मेरे लिए पीपल स्टोरी सबसे पहला होता है। लोग मेरे लिए ट्रायंगल होता है, पीपल लोकेशन एंड इवेंट। अगर इवेंट नहीं है मैं करूंगा ही नहीं कोई फिल्म। मेरे को मतलब बैठ के कहानियां नहीं सुनवानी है, वो मेरे लिए सबसे टायरिंग चीज हो चुका है लाइफ में। वो करना है तो कॉर्पोरेट फिल्म्स हैं, वो करती हैं, ठीक है। बट अगर फिल्म बना रहे हो तो पीपल लोकेशन। वाई लोकेशन? बिकॉज तुम ऑडियो विजुअल मीडियम में हो। तुम्हें मैं अगर लद्दाख की ब्यूटी दिखाऊंगा तुम देखना चाहोगे। तुम्हें अगर मतलब यशराज की अगर तुम देखोगे तो वो लोकेशन पे काफी दिखा था, स्विट्जरलैंड से लेकर लंदन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, यू फील गुड अबाउट इट। एंड इवेंट, वाई इवेंट? बिकॉज जो प्लॉट की बात करते हैं वो किसी इवेंट के अराउंड होता है। तो अगर ये ट्रायंगल मेरा फिट हो जाता है देन आई एम इन फॉर द प्रोजेक्ट। बहुत सिंपल। अगर इवेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स नहीं करता। मेरे को मेरा वो जॉनर नहीं है। मेरे को नहीं करना है हिस्ट्री का, क्योंकि प्रेजेंट ही काफी कुछ दे रहा है अभी लाइफ में। तो मेरे को हिस्ट्री के लिए जो लोग कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, उनको करने देते हैं। मैं प्रेजेंट में डील करता हूँ। मेरे को बस उसी में ही काम करना है, जो चीज मैं कैप्चर करके तुम्हारे तक पहुंचा पाऊँ, वो मेरा इंटरेस्ट है काम करने का। All right. So thank you once again for all the valuable insights. It was really a pleasure talking to you. And I'm Thank you. sure all our juniors have gained a lot of learnings from you. Thank you once again.